Good morning to one and all present here. I, Vidushi Saxena, on behalf of IIC and the Department of Media and Communication Studies, Jagannath International Management School, Vasant Kunj, would like to welcome our guest, Dr. P. Prashant. We are fortunate to have Dr. P. Prashant with us, who will be enlightening us on the topic Achieving Problem, Solution Fit, and Product Market Fit. Dr. P. Prashant is a Deputy Dean, Industry Academia at Khalsa College of Engineering and Technology, Amritsar, and IIC President. Also, he is working as an Assistant Professor, Mentor of Change at Atal Innovation Mission. But before getting on board with the session, I just want to inform one and all present here that we are organizing these kind of sessions under IIC, that is Institution Innovation Council. IIC was established on 21st November 2018 at GIMS Vasant Kunj as per the norms and directives of Ministry of Human Resource Development, MHRD, Innovation Cell, MIC. The Ministry of Human Resource Development, Government of India has established MIC at AICTE with the purpose to systematically foster the culture of innovation in all higher education institutions, HEIs across the country. The primary mandate of Innovation Cell is to encourage, inspire, and nurture young students by exposing them to new ideas and processes, resulting in innovative activities in their formative years, fostered through network of innovation clubs in higher educational institutions. Now, I would like to invite Dr. P. Prashant to enlighten us with his knowledge and experience. Sir, the stage is all yours. Hello, I'm audible, dear? Yes, sir, you are. Okay. Thank you so much for your warm welcoming, dear. First of all, good afternoon to all of you. Thanks for inviting me to share my knowledge on your organization and work with your students. It's a great opportunity to me to share my knowledge and thoughts and everything with you. I hope my camera is also visible. Please take it. I'm sharing my screen also. Okay. My screen is visible. Sharing screen. Yes, sir. Thank you. दरवाजा बंद कर. Give me a second, please. So basically, what today we are going to learn something different into the innovation state, because everyone know that innovation is easy to say that, but as per the knowledge, as per the guidance, it will be handling is also very critical thinking for us. So today we are learn how to fit our product into the market as per the demanding creative. If I'm say that, agar example, agar मैं both all are you comfortable with both of language, Hindi, English, or only English? Vidyushi, is it comfortable both of language? Yes, sir, it is comfortable. Thank you. So basically क्या होता है कि if we are asking any type of searching और our product fit करने के लिए market के अंदर हम क्या करते हैं? देखो मैं अगर ईयरफोन्स और ईयरबड्स की अगर बात करूं तो सबसे पहले कंपनी का नाम क्या आता है? बोट, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांडिंग चल रही है बोट का. तो उसी तरह ही वो अपना प्रोडक्ट को इतना मार्केट में फिट कर दिया कि अगर ईयरफोन की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो डायरेक्टली बोट का नेम आता है, तो वो मार्केट के अंदर फिट हो चुका है. सेम उसी तरह ही हमारी प्रोडक्ट को कैसे हमने मार्केट में फिट करना है, तो उसके रिगार्डिंग आज हमने जानेंगे. सो बेसिकली आई एम एक्सप्लेनिंग हियर how the product will be fit into the market with the using of particular solutions or finding the some major techniques and ideas we can improve that. So basically achieving a problem solution fit and product market fit. Basically क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं. Product and market fit is identifying and compiling the value hypothesis. Product market fit is when you build something that people want. Product market fit is when you have the right solution to a problem that
that's worth solving product market fit is when users love your product so much they tell other people to use it. So basically what, whenever we are trying to do that something new thing, आपके अपने प्रोडक्ट को फिट करने के लिए हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हो, बट प्रॉब्लम फेस करने से पहले आप ये नहीं सोचा कि मेरे प्रोडक्ट को किस तरह मैं इंट्रोड्यूस करूं. That should required how you should introduce your product into the market. जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे, तो आप प्रोडक्ट को फिट नहीं कर सकते. अगर मैं बेसिकली एक एग्जांपल अगर बोलूं, बेसिकली देखो अगर मैं कोई चीजें नया बना रहा हूं तो हमारी पेरेंट्स के साथ हम डिस्कस करते हैं कि हाँ मैंने ये नया चीज बनाई. उसके बाद हम क्या कहते हैं, हमारे अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाई नया. तो इस तरह ही आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर फिट करनी होती है. तो इसकी स्ट्रैटेजिकली एंड प्रोडक्ट फिट को कैसे करना अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा अगले एक एक स्टेप पे. तो बिफोर एक्सप्लेन दैट स्टेप्स यू शुड लर्न अबाउट समथिंग एंटरप्रेन्योर. सो व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द बेसिक इंट्रोडक्शन. सो व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? बेसिकली थिंक ऑफ द पीपल. एंटरप्रेन्योर ये नहीं कि हमने बिजनेस स्टार्ट कर दी. एंटरप्रेन्योर उसको हमें बोलते हैं जो हमें आगे डेवलपमेंट करते हैं. सो बेसिकली व्हाट entrepreneurship is the process of designing, launching and running a new business which is often initially a small business. जो समझ रहे हो, I hope you understand that. Basically if you are launching any small business, the people who create these businesses are called entrepreneurs. इन businesses को हमें बोलते हैं entrepreneurs. Okay, then entrepreneur का कुछ requirement of characteristics होते हैं. Requirement of characteristics of entrepreneur it should be followed that. So basically क्या है, because आप अपना टॉपिक में वही रख रहा हूँ प्रोडक्ट एंड मार्केट फिट, बट उससे पहले आपको कुछ स्किल्स भी लेना बहुत जरूरी है, कुछ पॉइंट्स जानना भी बहुत जरूरी है. वो आपका हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर. इनोवेटिव यू शुड योरसेल्फ, क्रिएटिव योरसेल्फ, motivation yourself, good communication skills is required into your business sector or any entrepreneur sector. Good dynamic qualities and dynamic looking is required. Self confidence is the most important part. Leadership, technical knowledge, desire for responsibility. If I want to take in a startup, in the startup you should require one idea, one vision, successful startup mission and plan is required. Your startup plan, what is that? And according to the plan, your marketing strategy will be created. Find the competition. So it will be the easily understandable. Same is the base. One cycle is also there as an entrepreneur can switch their product and market fit into the work. Basically what you should have a passion. एक यूनिक पैशन होना चाहिए अपने आप में कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं पब्लिक को सर्विस देने के लिए आया, पब्लिक को मैं कुछ बेनिफिट देने के लिए आया हूं. ये आपके पैशन होना चाहिए. प्रोफेशन अलग होता है, पैशन अलग होता है. प्रोफेशन इज मींस वर्किंग पीपल, पैशन मींस यू आर क्रिएटेड सम पैशन. जैसे एग्जांपल पैशन मेरा है कि मुझे मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है, मैंने मोटिवेट स्पीकर बनना चाहता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, कि मैं पैशन है मेरा. बट मेरा प्रोफेशन क्या है? टीचिंग. तो मेरा प्रोफेशन फिक्स है बट पैशन कभी अलग नहीं होता. अगर मेरा पैशन हो सकता है कुकिंग करने इंटरेस्ट है, वो मेरा पैशन है, वो मेरा प्रोफेशन नहीं है, वो मेरा पैशन है. उस पैशन को आप एंटरप्रेन्योर को एक पैशन की तरह डील करना चाहिए. उस पैशन में क्या होता है कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, डेडिकेशन दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका डेडिकेशन दोगे. डेडिकेशन में क्या होता है? एक्शन प्लानिंग आ सकता है. आफ्टर एक्शन प्लानिंग यू कैन क्रिएट योर ओन आइडियाज. आजकल यूट्यूब में देख रहे होंगे जैसे भी कुकिंग को लेकर कुछ जो वीडियोस होती है, देखो वहां पे उनके प्रोडक्ट को पिच करने के लिए कितने तरह की वीडियोस वो बनाते हैं, उतने अट्रैक्ट करते हैं, उसके अट्रैक्ट म्यूजिक फिट करते हैं, उसकी टेस्ट ऑफ मसालास अलग यूज करते हैं. सेम फॉर एजुकेशन सेक्टर, सेम फॉर अदर सेक्टर्स आल्सो, दे आर प्रमोटिंग देयर अकॉर्डिंग टू द एक्शन क्रिएटिविटी. सेम ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड इज आल्सो रिक्वायर्ड. आप अपना कॉम्पिटिटर्स में भी अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं, कुछ न्यू आइडियाज लेके आए ऑन द स्पॉट, आपने भी अपना अपना चेंजेस लेके आए. दिस इज द कंटिन्यूअसली क्वालिटीज ऑफ साइकिल ऑफ एंटरप्रेन्योर. ये क्वालिटीज ऑफ साइकिल का एंटरप्रेन्योर इज द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग फॉर अस. नाउ हाउ डू यू एंश्योर प्रोडक्ट एंड मार्केट फिट? ये बेसिकली एक स्मॉल क्वेश्चन है हमारे माइंड में हमेशा क्रिएट होती है कि मेरा प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर फिट कैसे करना है. तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, वो क्वेश्चंस मैं आपको सुनाने चाहता हूं, मतलब उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आंसर भी दूंगा आपको. डिटरमाइन योर टारगेट कस्टमर. दिस इज योर बायर पर्सनल. बी रिमेंबर, आइडेंटिफाई अंडर सर्व कस्टमर नीड्स. ये आप हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा कस्टमर नीड्स है वो पूरा करना. Define your value proposition. Specify your minimum viable product MVP future set. Minimum
वायबल प्रोडक्ट मतलब मिनिमम वैल्यूएबल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो बोला जाता है, उसको आपने फिक्स करनी है. Create your MVP prototype, create your own prototype. Example, if I given that in the market, so there are different store markets are there. Example, Vishal Mega Mart, they are created their own price. If I call that like Easy Day, they are creating their own market price. If I take that Big Bazaar, D Mart, there are different are there. They are create minimum valuable product. They are created. Test the MVP with real customers. Real customer means who is regularly your customer, your friends, your network members, or regular consumers who can give them some ideas, give them putting the valuable products. Now, example on that MVP base, I'm given one example here. How do you know you will be achieved your product market fit? You have found the product market fit when you can repeatedly acquire customers for a lower cost than the what they are worth to you. इसमें देखो आपको बेसिक एग्जांपल में बताता हूं. देखो प्रोडक्ट ए इज आल्सो देयर एंड प्रोडक्ट बी इज आल्सो देयर. देखो प्रोडक्ट बी इन द ब्लू, प्रोडक्ट बी इन द ग्रीन लाइन एंड प्रोडक्ट ए इन ए blue line or product B in a green line. So what is the difference you are looking here? See there, one person what do that, अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो क्या करेगा, अपना 50% को फिक्स कर दिया कि मैं यहीं तक प्राइस में सीमित रहूंगा. बट एक पर्सन ने क्या करा, उसने धीरे धीरे डिस्काउंट को ग्रोथ करा, मतलब अपना प्रॉफिटेबल मार्जिन को उसने लॉस में नहीं लिया, उसने धीरे धीरे ग्रोथ करवाया अपना. हैव टू फिट द प्रोडक्ट इन द मार्केट, मतलब उसने जो प्रोडक्ट को 10 रुपए में लॉन्च किया, धीरे धीरे उसने 12 रुपए करा, उसको 18 रुपए करा, जो कि कंज्यूमर की माइंड के अंदर फिट करा प्रोडक्ट को. मतलब उसने रिटेंशनल वैल्यू को इंक्रीजेबल करा, प्रॉपरली डिस्काउंट अप्लाई करना, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना, उसके अपना प्रॉफिट को लॉस नहीं करा. मतलब उसने अपना 100% प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द टाइम दे सेट दैट, वो अपना टाइम के अकॉर्डिंग सेट करा. सो दे कैन इजी दैट फॉर फिट इनटू द मार्केट प्रोडक्ट. ओके, सो कन्वीनियंट कंटेंट वेराइटी आपकी अलग अलग चीजें में एक एग्जीबिशन प्राइस होना चाहिए, सो दैट इट विल बी इजीली फिट इनटू द मार्केट. अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, रोड साइड टिफिन सेंटर और एक रेस्टोरेंट, तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा? ज्यादातर पीपल जो फॉलो करेंगे, जो आपने इन द प्रेजेंस में क्वालिटी बने, इन द प्रेजेंस में हमारी सामने बने, गुड क्वालिटी में बने, प्रॉपरली बने. वही रेस्टोरेंट पे हमें विजिबल पे नहीं बनती है, वो अपनी तरफ से पहले ही बना के दे रखेगा, नहीं तो पहले हमारे सामने बना के वो 20 मिनट्स में लेके आता है. तो इसमें फर्क होती है. तो वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो कौन सी चीज चॉइस करना, कौन सी चीज रिक्वायरमेंटली फिलफिल करना, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर फिट करना, then only it is possible for you. जैसे आज मैं ये प्रोडक्ट मार्केट फिट के ऊपर टॉपिक के ऊपर दे रहा हूँ, मैं अपना पिच दे रहा हूँ कि मेरा ये टॉप जो दे रहा हूँ ये इजीली फिट हो आपके माइंड के अंदर. वो डिपेंड होता है कि आप किस तरह की इसको कैपेबल कर रहे हैं, वो डिपेंड होती है. नाउ there is some problems are there, so how can we fit our solution fit we are discussing now. So basically what here basically there are two major problems are there in solution fit. You need to conduct प्रॉब्लम सोल्यूशन इंटरव्यूज. आप अपने हमेशा कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, कुछ भी करते हो, आप अपना प्रोडक्ट का सोल्यूशन का एक इंटरव्यूज राउंड क्लिक करना है, जो कि एक डिस्कशंस अबाउट योर प्रोडक्ट. इट मींस दैट यू नीड टू जंप ऑन कॉल्स विद योर ईयरली एडेप्टर्स एंड आस्क ऑल द थॉट्स क्वेश्चंस. Yes, I know that most of business do that with a simple survey sent by email. But nowadays we have a different platforms. I hope you know that WhatsApp, we have that, email option is also that, social media platforms are there like Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Co-app, different apps are there. You can take the survey, ask your problem, ask the problems of the consumers, those things are facing that, then do that सर्वे के अकॉर्डिंग आप अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करिए, देन अगेन वो प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करिए. दैट इज कॉल्ड रिव्यू ऑफ योर प्रोडक्ट. आपने अमेज़न में देख रहे होंगे रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट, आपको रोज कुछ ना कुछ रिव्यूज मिलती है. आप अपना प्रोडक्ट को बाय करने से पहले क्या करते हो? रिव्यूज को चेक करते हो. सो वो रिव्यूज के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट का मैचेबल वैल्यूज वो यूज करते हैं हम. तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान करनी है कि क्या प्रोडक्ट को, कंज्यूमर को क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर फिट करनी है. तो ये एक हो गया सॉल्यूशन 1. इट इज अ सर्वे. हाउ डू यू डू न्यू प्रोडक्ट फिट इन द मार्केट कंपनी, इन द कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. अगर आप कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट को अगर फिट करने चाहते हो मार्केट के अंदर, देयर इज सम स्ट्रेटेजिकली यू नीड टू गो हेड दैट कि
जो कस्टमर्स और एक ब्रेनस्टॉर्म आपको क्रिएट करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं आपके पास, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है सबसे पहले उनके ऊपर आपने इफेक्टिव देनी है. लाइक ए ब्रेनस्टॉर्म ए न्यू आइडिया, द जर्नी टू प्रोडक्ट लॉन्च बिगिंस विद ए न्यू प्रोडक्ट आइडिया एंड शेपिंग ए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. ये प्रोडक्ट को एक कॉन्सेप्ट देना है, उसके अकॉर्डिंग आपने देनी है. डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, specify the value proposition, shape a marketing strategy, testing and product launch, measure success of your product. See this again, I explained that in the picture. अगर एक कंज्यूमर ऑलरेडी आपका रेगुलर कस्टमर है तो आप उसको उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दीजिए और उस प्रोडक्ट को उसको ट्राई करने के लिए बोलिए. उस प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है उसके अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाइड फॉर्म दीजिए. उस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ला सकते हो. तो आपका ये वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 वर्जन का जो स्लाइड्स होती है वो आपको बेनिफिशियली करता है. तो एक न्यू प्रोडक्ट को इजीली हमें अटैच कर सके मार्केट के अंदर. Then why is product market fit is important? It is a basic good challenge for us nowadays. अगर देखो nowadays क्या कि different कंपनीज है. अगर मैं भी एग्जांपल दूं क्लॉथ्स इंडस्ट्री, देखो क्लॉथ, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर देयर इन द मार्केट. बट हमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर शोरूम्स पे जाके बाई करते हैं, नहीं तो पर्टिकुलर ब्रांड पे जाके मैं बाई करते हैं. नहीं तो आजकल ज्यादा स्टार्टअप्स आ चुके हैं, तो हैंडलूम्स का भी ज्यादा स्टार्टअप्स हो चुके हैं. तो हमें चॉइस करने में प्रॉब्लम आती है, फिट करने में प्रॉब्लम आती है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है क्या नहीं लेना. कुछ अलग अलग, क्योंकि इंडियंस में जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ पॉपुलेशन है. तो 130 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन के सेटिस्फाई तो कोई भी नहीं कर पाएगा. इट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस. तो उसके अकॉर्डिंग एक मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट को फिट करना है. तो कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ. इंडस्ट्री की क्लॉथ इंडस्ट्री जैसे आपको एग्जाम्पल नाम ले रहा था, तो देखो नाइक का स्पोर्ट्स क्लॉथ कितने डिमांडेबल है, वैसे स्पार्क का कितना डिमांडेबल है, फास्ट ट्रैक का भी डिमांडेबल है. तो ये कैसे उन्हें अपने मार्केट में फिट कर रहे हैं? ये क्या 130 करोड़ ऑफ पीपल्स को सेटिस्फाइड कर पा रहे? नो, दे आर फिट देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजिकल पीपल्स. But as per the policy of 2018 onwards, the startups, they are following all type of startup policies to ground level to high level people. So उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्ट कैसे फिट होगा, उसके लिए एक स्मॉल टास्क है आपके लिए. प्रोडक्ट मार्केट फिट इज द डिग्री to which a product satisfy a strong market demand. जो मार्केट डिमांड कर रहा है उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर फिट करना है. मतलब आपका प्रोडक्ट अगर डिमांडेबल है, मार्केट के अंदर इतना स्ट्रांगली फिट करो कि वो प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेटिंग होते होते आपके सक्सेसफुल प्रोडक्ट पे आए. मतलब एक प्रोडक्ट को न्यूली अगर लॉन्च कर रहे तो उस प्रोडक्ट को 15 दिन ट्रायल बेस पे शेयर करिए. जो आपके पास एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स है, जो एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स है, जो एग्जिस्टिंग कोलीग्स है आपके पास, उनको पहले दीजिए. देन क्या होगा आपका, ए स्ट्रॉन्ग मार्केट फिट इज द ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिल्डिंग ए सक्सेसफुल वेंचर in which the company meets early adopters, gather feedbacks and gathers interest in the product. वो आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है. अब मैं एक रेस्पॉन्सिबल आपको बताऊंगा जो कि प्रोडक्ट फिट कैसे करना मार्केट के अंदर. एक एंटरप्रेन्योर ने ये स्ट्रेटेजिकली एक पिरामिड क्रिएट किया था, वो मैं आपको पिरामिड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ. According to entrepreneur and investor Mark Anderson, who is often credited with developing the concept of market fit, means finding a good market with a product capable of satisfying the market. The product market fit pyramid framework was created by the Dan Folse. So देखो, ये हो गया आपका product. In the above part is your product, and we have two types of market. One is targeted customer market, another is underserved needs market. तो targeted consumer मतलब क्या है? Already existing consumers or rich of the peoples in the market, that people are. Another category is that underserved needs, जिनको needs है उसके according आपकी product कैसे fit करना है. तो देखो, in this of both of parallelly of pyramids, when you fit into your market, अगर मैं example देता हूँ इसमें, Apple phone and Samsung phone, there are two phones are there. So which phone are demand in the market? There are both mobile phones are equally demanded in the market. Why? Same features are there, same things are there, everything are same. But one thing is there, budget equality is the down of the quality, and security features of down of the quality. But 35% people are buying Apple phone, 65 people are buying, 65 people are buying Samsung phone. That is part of Android. I'm taking the name of Android and iOS, there are different are there.
but both are equally parallelly growing into the market. So that's why अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट के अंदर मार्केट के अंदर फिट करना है, ब्रांड को नहीं देखना है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल्स, रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स, रिक्वायरमेंट ऑफ योर फ्रेंडली मूवमेंट फ्रेंड्स, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, उसके अकॉर्डिंग दोनों पिरामिड को अकॉर्डिंग एडजस्ट हो पाएगा. इट मींस योर अंडरसेव्ड कंज्यूमर्स एंड टारगेटेड कंज्यूमर्स इज इक्वल लेवल. दे आर नॉट एन डिफरेंट, दे आर कॉमन पीपल, दे आर कॉमन कंज्यूमर्स. So we are both are in common platform. So we need to merge according to the demandable part, that is the product and market fit into the market. So it will be easily understandable. I hope you understand something here. So we are going to the how to pitch into the product into your market now. So how do you validate product solution fit? So there is some questions, we are facing some problem. Do they have a problem worth pursuing? Are there enough people that have it? Number one question, is it one that we claim to be solving? Do they care to solve it? Are they willing to pay for it? Does a case of not solving the problem cost them in time or money? देखो, अगर मैंने कोई मोबाइल खरीदा, नहीं तो मैंने कोई प्रोडक्ट को सेल कर चुका हूं मार्केट के अंदर, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपने कभी भी आपने प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट बिफोर सेलिंग यू हैव सम पॉलिसी. आप अपना प्रोडक्ट का एक पॉलिसी होना चाहिए बिफोर सेलिंग एनी प्रोडक्ट. चलो अगर आपने मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल कर दिया और आपके पास सोल्यूशन नहीं है और आपने पॉलिसी क्रिएट नहीं किया, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? एज पर द कंज्यूमर डीलिंग टाइम हैव द कमिटमेंट, आपने जो कमिटमेंट कर चुके हो, according to the commitment, as per the you need to fulfill the demand. And second thing, if you have a policy, already explain them, so according to the policy you need to follow. अगर एक मोबाइल फोन खराब होता था, हम क्या करते हैं? वारंटी पीरियड में सर्विस सेंटर पे भेजते हैं कंज्यूमर को. सर्विस सेंटर पे क्या करेगा? वो सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, नहीं तो उसके अपना अपना एक्सप्लेनेशन वो देगा. अगर उससे भी ऊपर हो जाएगा, कंपनी के पॉलिसी में मेंशन्ड होता है कि एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन रिप्लेस ऑप्शन होता है, मोबाइल एक्सचेंज ऑप्शन होता है, वो एक्सचेंज वो कर सकते हैं. एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. डू दे केयर इट सॉल्व इट एज पर द पॉलिसी? यस, दे कैन सॉल्व इट एंड वी कैन सॉल्व इट. आर दे विलिंग टू पे फॉर इट? एज पर द पॉलिसी नॉर्म्स you are required to discuss with them. He is in warranty period, he and she is in warranty period, they don't require to pay. If they are crossed the warranty period or guarantee period, they should to pay the some amount. Does a case of not solving the problem cost them in time or money? It is depend upon the policy as per the situation of demand creating. Should only then only possible to exchange the part or exchange the money, that is depend upon you. What is customer problem fit? How can you ensure that product addresses a need that matters to customers enough to move them to pay for solution? ये आप बहुत ध्यान से सुनना. Developing and iterating the hypothesis about the problem and target audience requires customers research such as survey, interviews, ethnography and low-fi prototype testing. मैं हमेशा अभी बोलता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एक सर्वे के थ्रू ही हमें इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करें. अगर आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हो, तो टेक द सर्वे अबाउट योर प्रोडक्ट, देन गिव द सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द सर्वे प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इनटू द सर्वे फॉर्म. जो प्रॉब्लम्स आप सर्वे फॉर्म में गेट पाते हो, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हैं. हाउ टू पिच? अगर आप एक लीन स्टार्टअप मेथड हो, स्टार्टअप के अंदर आ रहे हो, तो इस मेथड में क्या करना है आपने? ए लीन स्टार्टअप इज ए मेथड यूज्ड टू फाउंड ए न्यू कंपनी और इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी. द लीन स्टार्टअप मेथड एडवोकेट डेवलपिंग प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर्स हैव ऑलरेडी demonstrated the desire so that market is already exist as soon as the product is launched. यही मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो और स्टार्टअप बेस पे लॉन्च कर रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट को पहले ही पिच करो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स, एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स ऑफ द नियर बाय नेटवर्क, एग्जिस्टिंग ऑफ योर एरिया, जहां पे आपका अपना स्टार्टअप लॉन्च किए हो, शॉप लॉन्च किए हो, कोई वेंचर लॉन्च किए हो, तो अपना रेडियस पे पहले उसको स्प्रेड करिए. दैट इज द गुड थिंग फॉर अस. How will you market the product in a new market? आप अपना प्रोडक्ट को न्यू मार्केट के अंदर कैसे फिट कर सकते हो? ऑफर लॉयल कस्टमर्स एंड एक्सक्लूसिव प्रीव्यू ऑप्शन. एक्सक्लूसिवली आप प्रीव्यू प्राइस दीजिए. यूज ए स्पेशल इंट्रोड्यूसरी ऑफर फॉर एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स और न्यू कंज्यूमर्स. Make a use of Google My Business. Already it is no common part for everyone. In 2017, the Google option is created. My Business option, there are option there. You can create your business profile there.
run social media contest through the social media platforms of different social medias, spread the word via email, जो सर्वे फॉर्म में आपके पास ईमेल्स होंगे उस ईमेल्स के थ्रू इसको प्रमोट करिए, write a blog post in different magazines, news and everywhere, host an event, offer a complimentary upgraded for existing consumers, those who are regularly buying the products on your site. How would you convince a customer to buy your product? Example, ये बहुत ध्यान से सुनिए. These 7 tricks to convince the client very easily. These 7 tricks will be support for you. Be natural and do not use scripts. कभी भी आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, कुछ भी करते हो, तो बी नेचुरली से अबाउट योर प्रोडक्ट. आपकी प्रोडक्ट के बारे में इतना नीट एंड क्लीन में एक्सप्लेन करिए कि उसको ये ना पता चले कि मैं और कहीं से जाके पता करूं इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. इतने नेचुरली आप उसको मोटिवेट कर सके. सेकेंड, एक मंत्र, आस्क अबाउट द क्लाइंट वेलबींग. जब भी कोई भी कंज्यूमर आता है, हमारी इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग नमस्ते इज द बिगेस्ट, मतलब एक रेस्पेक्ट होता है हमारे लिए. तो वो रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग क्लाइंट के हेल्थ के रिगार्डिंग पूछिए, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स क्या है पूछिए, क्लाइंट के साथ अगर कोई है तो उनकी वेलबींग्स पूछिए कि कैसे है, उनकी हेल्थ कैसे, क्या है रिक्वायरमेंट, धीरे धीरे उनकी बात लीजिए. Then use names while talking with a client. Dear sir, dear ma'am is the very responsible. If agar client, young children are there, students if are there, giving them respect of particular sir, ma'am is the respected thing. You can call that. Prove that your product are better than those offered by competitors. जो प्रोडक्ट आप प्रेजेंट कर रहे हो कि कॉम्पिटिटर वो प्रोडक्ट दे नहीं पाएगा, ये चैलेंज मत करो, बट ये बोलो जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है उससे बेटर है मेरा प्रोडक्ट, ये चैलेंज कर सकते हो. ये ना बोलो कि मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ मार्केट में अंदर 100% कोई नहीं दे पाएगा, ये कभी भी नहीं बोलना. आप इतना बोलो कि ये मेरा प्रोडक्ट है सर, मैं जितना बेस्ट दे पा रहा हूँ ये प्रोडक्ट के ऊपर और कोई बेस्ट नहीं दे सकता, ये आप बोल सकते हो. चैलेंज इज अ गुड थिंग, नॉट टू द ओवर कॉन्फिडेंट इज नॉट गुड. कीप इनिशिएटिंग फर्दर कन्वर्सन, और मतलब कनेक्टिंग रहना बहुत जरूरी है कंज्यूमर के साथ. स्पेसिफाई द पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कस्टमर. पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करो. एक्ट ऑन इमोशंस ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन, नॉट ऑलवेज. एक्ट ऑन इमोशन ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन, ऑन डिमांडिंग क्रिएट, not to always. How can I market product online? There are same 7 tricks are there, but as per the due to COVID and due to other things, some virtual platform are there for the pitching our product, that is called PRO. Media relations is most important. Social media is also most important. Digital advertising nowadays are there. SEO, search engine optimization base also you can create your product pitch. Press advertising through the magazine, through the newspapers also you can do that. Direct emails, email marketing is also there. You can send the product details about everything in the market through the email also. If you want to become an entrepreneur or becoming a seller or becoming a set your product into the market, you should some things are some rules are there. You need to choose that. You should choose a good mentor. You should have plan good time management slot. You should have good business plan is required. Good finance safety is required, and backbone you need to create that. Entrepreneurial spirit, you should create your own entrepreneurial spirit is required for us. And same cycle again, I repeat to you, it is a strength of your part. You should have creativity, you should innovative, your perfect leader's type is required, technical knowledge of computer is required, basic technical knowledge is required. Coordinating and management quality is also most important part for us. Risk taking ability, this is the biggest स्किल इज फॉर अस. अगर ऑन द स्पॉट अगर एक सिचुएशन को आप हैंडल करके अगर उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, इट इज कॉल्ड रिस्क एबिलिटी. हाईली डिजायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर ओरिएंटेड. These things will be strength of our business or to fit our product into the market and the situation of solution. It is a part of entrepreneur or startup. It is a part of our one of skill. So this is called as a product fit and market fit. As per my knowledge, I shared with you all the things. If you have any query, you can ask me now your questions, so I can give the answers. Yes, if I have any questions, you can ask now. This is open for questioning round. You can drop the questions in chat box also. So do you support partnerships in startups? Repeat again, please. Sir, I said, do you support partnership culture in startups? See that good partnership business is a good thing,
but as per your understanding of signing policies, what the type of signing policy is there on your business, that is depend upon your policy signings. See there in between of example अगर मैं दूं, दो भाई को बीच में भी एक पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अपना पार्टनरशिप बिजनेस को सपोर्टिव करना नहीं करना वो देखना चाहिए. It's depend upon your policy, what you have given the percentage, what have you given the points in mentioned on your policy. As per the agreement only you can go ahead with the product fit and market fit on the partnership deed. There is a partnership deed is there. How we can know that the customer will be convinced or believe us by the method we choose for marketing, how we can plan the strong strategy. Student, क्या नाम है इसका? Okay. निश्चित, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बेसिकली एक एग्जांपल देता हूं. आप रोड साइड में टिफिन भी खाते हो और एक रेस्टोरेंट में भी टिफिन खाते हो, तो आप अपनी तरफ से बताइए, तो आप कौन सी चीज को चूज करने के लिए ज्यादा प्रेफर करोगे? दोनों में से आप कौन सी को ज्यादा प्रेफर करोगे, रोड साइड टिफिन और रेस्टोरेंट? एज जनरल कंज्यूमर आई एम आस्किंग, कौन सी चीज को प्रेफर करेंगे हम? अगर वो कंज्यूमर के पास 10 रुपए होगा वो रोड साइड को प्रेफर करेगा, अगर उसके पास 100 रुपए होगा वो रेस्टोरेंट को प्रेफर करेगा. ये कैसे आप बोल सकते हो? ये हम बोल नहीं सकते. उसके माइंड ऑफ स्ट्रैटेजी और आपके प्रोडक्ट का वैल्यू, उस प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसमें क्वालिटी क्या दे रहे हैं, उसको आपने पिच करनी है मार्केट के अंदर. अगर देखो, मैं अगर पानी पूरी खाने जाता हूं तो मैं रोड साइड में भी खा सकता हूं तो बहुत टेस्ट आता है, वही मैं रेस्टोरेंट में खाता हूं तो वो टेस्ट नहीं आता. बट इनमें भी फर्क है कि रोड साइड में वो किस तरह क्वालिटी और किस तरह नीट एंड क्लीन में वो सेल कर रहे हैं और रेस्टोरेंट में किस तरह वे में बजट पे सेल कर रहे हैं. दोनों को स्ट्रैटेजी को आपने कंपैरिजन करना है. मतलब मैं सेल करने जाऊं तो मेरे लिए बेनिफिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे स्ट्रैटेजिकली प्लान करना होगा. ये नहीं कि मैंने ऑलवेज उसी चीज को मैं कंटिन्यूसली रखना है. आपकी स्ट्रैटेजिकली प्रोडक्ट के अंदर उस मेथड को कन्विंस करने के लिए आप अपना पॉइंट शो करना है कि मैंने कौन सी चीज को पिच करूं कि कंज्यूमर मेरे पास डाइवर्ट होगा, कि मेरे में क्या गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में गुड क्वालिटी क्या है कि मैं इसको हाईलाइट कर सकूं. सो देन आप अपना प्रोडक्ट को क्लाइंट के माइंड में फिट कर सकते हो. कन्विंस तभी होगा एक गुड पॉइंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है उसमें, ये चीज में. I hope you understand dear. If any question also there, you can ask also, Nishita. Okay, one other question is there. Can you explain market competition with respect of product fit, market challenge with the solution? There are a lot of challenges a startup has written product fit market. How can I one solve that? Can a competitive market? Let's see that in competitive market, there are different things are there. You want to give one take the one market. As in education sector or in the food sector, what sector you want? कौन सा सेक्टर आप ऐसा चॉइस करना चाहते हो कि उसमें इसको रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव मार्केट बताओ? अगर मैं एजुकेशन सेक्टर लूंगा, एजुकेशन सेक्टर में आपने क्या देखते हो? सबसे पहले आप अपना गुड क्वालिटी देखते हो, गुड चैलेंजिंग ऑप्शंस देखते हो. आजकल मार्केट के अंदर किसके नाम ज्यादा चल रही है? अगर एजुकेशन सेक्टर के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर लेके जाऊं, देयर इज वन कंपनी नेम nowadays everyone know that there is three companies are there. One is White Hat Junior, second is Udemy, third is Upgrade. They are three are edutech company are there now in the competitive market. But उसके अकॉर्डिंग अगर मैं दूं, मार्केट के अंदर 100+ edutech companies are there. Why these three companies are in top 3? Because they are providing good qualities, good response of the consumer satisfaction, given the good feedbacks into the digital platforms are available there. So that's why they are creating the email marketing solutions, and they approach their clients through the emails, WhatsApp, Facebooks, and everywhere. Everything's are available through our platform. If you are want to fit into our product on that same market, we can plan according to that. What can I provide unique for my peoples? So that will be pitched into the market very easily. I hope you understand. Yes, if any other question, please, dear. I guess there were these many questions only. So thank you so much, sir, for sharing your experience with us. It was indeed a motivational and wonderful session.
So I would like to invite Priya Jyoti to give the vote of thanks to sir. Thank you, Vidushi. Now I would like to extend my heartfelt gratitude to Dr. P. Prashant sir for this wonderful session. I would also like to express my gratitude to IIC, which gave me this opportunity to attend this kind of session. Last but not the least, I would like to thank and congratulate all the students and faculty members who attended this session. Thank you and have a good day. So with this, we come to the end of the event. Thank you all for attending this session.